So the next question is by I am Shivam and he's asking ड्रोन का क्या हुआ. So if you guys don't know, मेरे पास इंडिया में एक ड्रोन हुआ करता था. It was a DJI Mavic 2 Pro and मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उड़ाने में. I used to take it everywhere on all the trips I did in India after buying it. पर unfortunately वो ऊटी में एक ट्रिप के दौरान क्रैश हो गया था and it was crashed beyond repair. Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are doing fine. Well, first of all, thank you so much for the amazing response on my graduation day vlog. मतलब मैंने actually इतना expect नहीं किया था कि इतना अच्छा response आएगा और आपने तो मतलब फाड़ ही दिया एकदम views और likes और सब कुछ. So thank you so much. और जैसा कि मैंने अभी last vlog में आपको promise किया था कि next vlog जो होने वाला है that is going to be a Q&A vlog because काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि Q&A vlog you had some questions for me. तो मैंने सोचा कि ये 100th vlog होने वाला है ये वाला, तो इस वाले vlog में मैं Q&A करूँगा. So let's start taking your questions. But उससे पहले it's time for some iced coffee. Let's take the first question by Gautam Saluja. How's your life going in one word? इंटरेस्टिंग वुड बी द वन वर्ड बिकॉज लाइफ तो क्या भाई वैसे ही चल रही है जैसे कि आप सबकी चल रही है. क्वारंटीन में घर पे बैठे एवरीवन इज रिस्ट्रिक्टेड नाउ एंड इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी दिस वे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एवरीवन विल हैव टू वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज वैक्सीन आने में काफ़ी टाइम है अभी. बिकॉज लाइक आई हैव माई फ्रेंड्स इन द मेडिकल सेक्टर एंड दे ऑब्वियसली नो, आई मीन इवन यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि वैक्सीन डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. इतना जल्दी ये सब 2-4-6 महीने में नहीं बनता. एटलीस्ट इट टेक्स अ ईयर टू डू द प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह वगैरह और फिर उसको अप्रूवल्स मिलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. सो टिल देन आई थिंक द वे टू लिव इज़ विद सोशल डिस्टेंसिंग और फिर फेस पे मास्क ऑलवेज, हाथ में ग्लव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हाँ, बस वैसे वाली लाइफ में क्रिएटिविटी ढूंढते रहो और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो. क्वेश्चन इज बाय अजिंक्य एम. How did you manage to convince Kaka and Kaku to choose photography as your career? Well, it's a very good question and a question that has been asked to me by a lot of my friends. Honestly, बताओ तो I didn't have to convince them. I just went and told them कि this is something that I want to do. I showed some of my very good work and then work that has been appreciated by other people as well. I told them that इस फील्ड में ये है and I can do these things and they just said that okay, if you feel it's right you can go ahead and do it and I cannot thank them enough for letting me choose this career. So question by yours Foodly, ये कैसा नाम है? Anyway, so he asks what do you do when you feel a bit off and what keeps you motivated and going? So very good question yours Foodly. What do I do when I feel off? I actually do two things. First, I look at my grandfather's photographs because he was really very close to me and then he gives me the inspiration to feel happy, feel positive and do something great because that's how he was when he was with me. Also, secondly, what I do is what actually helps sometimes is I go back and look at some achievements that I consider as like my good achievements throughout my life. So I just go and look back at them and especially जो ऐसा होता है ना कि बहुत मेहनत करके अगर कोई चीज़ हासिल किया है तो I go and look back at those things and then I tell myself कि if you could do this you could even come across any other thing जो आ रहा है नया लाइफ में. That helps me being motivated all the time. So next question is by Pratik Seth. How to do good photography using phone because I do not want to invest big in DSLR. Very good question Pratik. I do get this question very often. The only way to start off in the right way is to start with whatever gear you have. Phone हो, मतलब अगर कोई एकदम बेसिक सा कैमरा हो या फिर एनी गोप्रो, एनीथिंग दैट यू हैव, एनीथिंग दैट यू हैव दैट क्लिक्स पिक्चर्स, यूज इट टू क्रिएट वर्क एंड देन आगे जाके मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड कैमरा इफ़ यू थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग दैट. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि वी जस्ट गो हेड एंड बाय वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और फिर वो पड़ा रहता है साइड में बिकॉज आगे जाके टाइम नहीं मिलता फोटोग्राफी करने के लिए या फिर इंटरेस्ट चला जाता है. तो ऐसे टाइम पे आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इफ़ यू आर वेरी कीन इन डूइंग फोटोग्राफी, गो ऑन यूट्यूब
यूट्यूब, सर्च फॉर सम ट्यूटोरियल्स, जैसे कि बेसिक अलग अलग रूल्स ऑफ कंपोजिशंस है या फिर अलग अलग लाइटिंग टेक्निक्स है. और लाइटिंग के लिए भी यू डोंट नीड अ फ्लैश और एनी पर्टिकुलर लाइट, यू कैन ट्राई एंड लर्न यूजिंग अ बल्ब ऑल्सो. तो फिर आप एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स देखो. इवन आई विल बी अपलोडिंग ट्यूटोरियल्स इन द कमेंट टाइम, तो यू कैन वॉच दोज, यू कैन प्रैक्टिस दोज विथ योर फोन. उसके लिए DSLR की ज़रूरत नहीं है. रूल्स ऑफ कंपोजिशन मास्टर करने के लिए DSLR की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट विथ योर फोन ऑल्सो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आई एम शिवम एंड ही इज आस्किंग ड्रोन का क्या हुआ. सो इफ़ यू गाइस डोंट नो, मेरे पास इंडिया में एक ड्रोन हुआ करता था. इट वॉज अ DJI Mavic 2 Pro एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उड़ाने में. आई यूज़ टू टेक इट एवरीवेयर ऑन ऑल द ट्रिप्स आई डिड इन इंडिया आफ्टर बाइंग इट. पर अनफॉर्चुनेटली वो ऊटी में एक ट्रिप के दौरान क्रैश हो गया था एंड वॉज क्रैश बियॉन्ड रिपेयर. वॉज अंडर रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months. और उसके बाद हम लोग को वही पता चला जो हम लोग को पहले लगा था कि होगा, कि इट वोंट बी रिपेयर्ड. सो या मतलब आई जस्ट हैव इट्स बॉडी जैसा है वैसा टूटा हुआ मैंने याद में रखा है, बट देन इट्स नॉट वर्किंग. Next question is by Neeti Pahuja and she's asking, don't you feel alone while staying in your room away from your friends? Obviously I do miss my friends a lot, especially Nikhil bhai, Shanis, Wasim, Zishan bhai, my other friends Chinmay, Pranav, Anjali, etc etc. So I do miss them a lot, but क्या करें, लाइफ में कभी कभी करना पड़ता है. Next question is by Krik Harshit, longest ride you have ever done? वैसे तो काफ़ी लॉन्ग राइड्स किए हैं और एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं, बट देन वन ऑफ देम इज़ मुंबई टू लद्दाख एंड बैक होम, देन मुंबई टू विशाखापट्टनम एंड बैक होम, मुंबई टू कन्याकुमारी एंड बैक होम, मुंबई टू नेपाल एंड बैक होम. आई हैव ड्रिवन माई कार फ्रॉम मुंबई टू भूटान एंड बैक होम. अब एक्चुअली काउंट करना पड़ेगा इसमें सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स कौन से. Next question is by Neeti Mehta and she's asking, what is Saili studying and which university? So she's doing a master's in industrial pharmacy from Long Island University, पर उनका कैंपस जो है वो अभी ब्रुकलिन में. Okay, so the next question is by Ishan Jewarjikar, Kawasaki ZX-10R or Triumph Tiger? Any day Triumph Tiger. I cannot ride the Kawasaki ZX-10R for more than 5 or 10 kilometers. मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है और फिर I cannot sit on that bike properly also. Kawasaki ZX-10R तो अपना मेहुल है ना, मेहुल से ही पूछ लो. Then Riz HM asks, when did you meet Nikhil bhai for the first time? So very interesting question actually. I was Nikhil bhai's one of the first subscribers, 2000 या 2500 सब्सक्राइबर्स जब थे निखिल भाई के तब. So उस टाइम पे निखिल भाई ने एक राइड ऑर्गेनाइज किया था, लाइक ऑल द सब्सक्राइबर्स राइड फ्रॉम मुंबई टू दहानू, और उस टाइम पे मैं पहली बार मिला था उनसे. और उसके बाद वी ऑल्सो वेंट टू अनदर राइड टू समवेयर इन इगतपुरी, आई थिंक विहिका हुए थे हम लोग. एंड देन उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मिले जब हम लोग लद्दाख गए थे राइड पे. उसके बीच में भी एक बार मिले थे राइड फॉर सेफ्टी के टाइम. ऑलराइट, सो मेरा एक्चुअली कैमरा का जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया था, तो मुझे अंदर आना पड़ा टू चार्ज इट, और फिर चार्ज करते करते काफ़ी टाइम हो गया. एंड नाउ आई रियलाइज दैट इट्स टाइम फॉर डिनर. सो मैंने सोचा कि अभी कुक करते करते आपके क्वेश्चंस लेता हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सैम एंड ही इज़ आस्क्ड 3 things you have learned from New York apart from your course. That's a very good question, Sam. New York City has actually taught me a lot of things and मतलब मैं गिन नहीं सकता इतने सारी चीज़ें एक्चुअली इस सिटी में आके या फिर अपना घर से बाहर आके सीखा हूँ. बट देन इफ़ यू आस्क मी टू शॉर्टलिस्ट 3 things that are specific to New York, first would be यहाँ पे आके you get to learn a lot about the hustling life, या फिर some people also call it the hamster life. जैसे एक hamster वो अपने व्हील में कॉन्स्टेंटली भागते रहता है, वैसे यहाँ पे आके you have to constantly run and do something to be updated in your field, या फिर you know to be good in your game. So New York City teaches you that. Apart from that, New York is a place that teaches you how to be tough in many ways, मतलब not just emotionally या फिर physically जो भी है, but then in a lot of ways New York City teaches you to be tough. Third thing which I actually learned from New York City is how to greet people whenever you meet them. मतलब I obviously knew how to greet them, but then यहाँ पे आके you know you realize that people are very polite and kind, even if you don't know them. मतलब if you walk into a Starbucks and you go to order a coffee, everyone will ask you like, hi, how are you, how's your day going, etc. I know they are not expecting answers, but then लोग बोलते हैं कि New Yorkers काफ़ी rude होते हैं. My experience has been otherwise. Yes, I've seen rude New Yorkers, but then mostly the city has been very kind and polite to me and taught me to be the same. Next question is by Mo167I. Is Saili your cousin? Very funny question. No, Saili is not my cousin. Saili is my best friend. We met when we were in junior college in like 11th standard. और फिर तब से we are like really very good friends. वैसे did I tell you what I'm making today? I'm making some mushroom masala.
Next question is by Aman Sharma. The most embarrassing thing you have ever did with your friends. Love you loads, Ashish bhai. Thank you, Aman Sharma. The most embarrassing thing, actually ऐसे काफ़ी मस्ती और embarrassing moments है दोस्तों के साथ. But the one which I remember is मैं अपने दोस्त मतलब मेहुल और जो मेरा राइडिंग ग्रुप था उन लोग के साथ मैं गया था जोधपुर. एंड वी वर स्टेइंग इन द होटल. बहुत ही अच्छा सा एकदम आई गेस 3 स्टार या 4 स्टार होटल था. और उसका जो बेड के साइड में जो टेबल होता है उसका जो टॉप था दैट वाज अ मार्बल टॉप. और फिर मैं ऐसे ही उछलता कूदता रहता हूँ हर जगह पे. तो आई वाज जस्ट डूइंग द सेम थिंग. और वो करते करते एक्चुअली मेरा पैर ज़ोर से वो मार्बल टॉप पे पड़ा और वो मार्बल टॉप टूट गया. सो वी लकीली ट्राई टू हाइड इट एंड देन किसी को कुछ पता नहीं चला. और फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने चेकआउट कर दिया तो समहाउ वी गॉट सेव्ड. Question is by I am Akash Jangir. Is US actually worth it for spending this much amount of money for education, and what about the ROI, return on investment? That is a very good question, Akash. A lot of people have this question in mind before they plan to come to the US for their studying, and I would say that it is actually upon you. मतलब जब हम लोग ने कोर्स चालू किया था तब मेरे जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने मुझे बोला था कि this course is actually as much as you want out of it. मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको सीखना है. यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ सेल्फ रिसर्च एंड गेट हेल्प फ्रॉम योर प्रोफेसर्स. क्योंकि प्रोफेसर्स जो होते हैं यहाँ पे दे आर वेरी हेल्पिंग. तो यू कैन ऑल्सो साइन अप विद अ प्रोफेसर फॉर सम पर्सनल प्रोजेक्ट. या फिर अगर आप प्रोफेसर से अच्छे से बात करते हो तो मे बी दे कैन गिव यू सम प्रोजेक्ट जो उनके पास आता है एंड दे कैन नॉट डू इट बिकॉज दे आर बिजी. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इट्स टोटली अपॉन यू कि हाउ मच यू रीप आउट ऑफ इट. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय AV समथिंग. मुंबईला किती मिस करतोस? मुंबईला खूप जास्त मिस करतो मी. स्पेशली बिकॉज मुंबई इज़ अ सिटी वेर आई हैव ग्रोन एंड यू नो लाइक बॉर्न एंड बॉट अप. तो फिर मुंबई की बहुत ज़्यादा याद आती है. बट इट्स ओके. ओके सो जब तक मेरा जो मसाला ग्रेवी है वो बन रहा था तब तक आई वांट टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय विशाल माखनी. ही इज़ आस्किंग डिड यू नॉट फील लाइक गोइंग फॉर सम अदर हाई रिवॉर्डिंग प्रोफेशन? So my first question would be, what is your exact definition of high rewarding? Because it is about the appreciation that you get from people for the art that you make. This profession is a very high rewarding profession. Secondly, if you're talking about the money, I have a lot of friends who are in this profession and making good money and sustaining themselves. So if you are considering photography to be a lower rewarding profession, you're very wrong, my friend. Important question by Prajwal C. Krish. Your advice for people who want to pursue photography in India? Advice would be, if you are just beginning in the field of photography, shoot anything that you want. मतलब and shoot as much as you can. Shoot various things. मतलब हो गया weddings, हो गया landscapes, हो गया travel photography, product photography, fashion photography. जो भी आपके हाथ में आता है, जो भी आप कर सकते हो. Have a friend who likes dressing up या फिर modeling for you, then do some fashion photography with him or her. If you have any wedding that's coming up in your family, go and do that. If you happen to travel outside your city, मतलब अभी तो नहीं होगा, but then later on if you happen to travel outside the city, do that. If there's something very dramatic happening in your society या फिर अभी जैसा COVID-19 वाला situation चालू है, then if you can go out and do some documentary photography, maybe when you're going out for groceries etc, do that. Try out all the fields that you can and then find out कि आपको कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है and then pursue that after you have built a basic portfolio. तो एक basic portfolio बनाओ, then approach clients and then धीरे धीरे start the process of photography. It takes a lot of time, probably 1 या 2 साल तो आराम से जाएगा, but then the end results would be good rather than just taking and sticking to one field right out of the way and not exploring other fields would be wrong, I feel. So just explore all the fields. देखो आपको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किस में आपकी क्रिएटिविटी एकदम अंदर से जाग रही है, और फिर उसके बाद वो वाला फोटोग्राफी में फील्ड परस्यू करो. ऑल राइट, सो ये हो गया अपना मशरूम मसाला रेडी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर. और इसके साथ अपना ख़त्म होता है आज का Q&A. आई होप आपको मेरे जो आंसर्स है वो अच्छे लगे होंगे. आई ट्राई टू पिक अप द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस या फिर द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड आई लव द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू गाइज आस्क्ड. मे बी आफ्टर 1 or 2 months ये Q&A वाला सेशन वापस करते हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली काफ़ी मज़ा है आपके सवालों का जवाब देते हुए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज. आई होप यू आर स्टेइंग हेल्दी जहाँ पे भी आप हो, एंड आई होप ये सारा सिचुएशन जल्द से जल्दी बेटर हो.
मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. ऑल्सो इफ़ यू हैवंट फॉलो इन इंस्टाग्राम, डू फॉलो इन इंस्टाग्राम, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट, उसका एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, बेसिकली IGTV पे डाला हुआ है. सो वो वाला वीडियो ज़रूर जाके चेक करना. ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबा देना, मतलब फ्री है. और लाइक या डिसलाइक जो भी है दबा के जाना. और मिलता है मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट. और हमारे मेहुल भैया पूछ रहे हैं कब आओगे वापस. अब तो मैं नहीं आ रहा, अब तू इधर आ, मैं देखो न्यूयॉर्क घुमाऊंगा. यहाँ पे अपन ड्राइव पे जाएंगे और फिर अपन वापस जाएंगे घर पे, ठीक है. तब तक नहीं आ रहा मैं, तू आ. और वसीम सर पूछ रहे हैं आईफोन ला रहा है कि नहीं. ला, तब तेरे लिए पक्का, जो चाहिए वो, जितना चाहिए उतना तेरे लिए पक्का. डन.